لوگوں کے کہنے پہ یہ کال میں بارات لے کے دولہا آ رہا ہے, دلہن کہتی ہے میں کمرے سے باہر نہیں آؤں گی. دلہن جی کمرے سے باہر آئے نا, گھونگھٹ اٹھائے نا. کہ آپ بھی سیاسی لیڈروں کی طرح عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ اکتوبر کی ڈیٹ دینی تھی. کچھ دیر بعد ہمیں خیال آیا کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ڈیٹ تو بہت غلط پرسوں کی ہے, مفتی طارق مسعود کے ساتھ آپ ایسا کر چکے ہیں. علی بھائی ہم آ گئے, 26 نومبر آ گئی. دیکھیں آپ دوسروں کو کہتے تھے کہ بابا پرستی ہو رہی ہے, ادھر باباؤں کے بابا کی پرستی ہو رہی ہے نا, آپ کہتے ہیں میں باباؤں کا بابا ہوں. یہ کیا بات ہے کہ صرف ویڈیو پہ ہی کہانی چلے گی اور ویڈیو پہ ایک دوسرے کو. اویس بھائی آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ انجینئر صاحب تو وہ شخصیت ہیں جن کی دشمنوں کی چالاکیاں جہاں پر ختم ہوتی ہیں وہاں سے انجینئر صاحب کی عقل اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کس بندے میں ہاتھ ڈالا ہے. انجینئر صاحب تو آپ لوگوں کے بڑوں کی باتوں میں نہیں آئے. اویس بھائی آپ تو شے ہی کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اویس ربانی صاحب نے یہ اب ضد کر لی ہے کہ میں 26 نومبر کو کسی بھی طرح انجینئر صاحب کو بھاگنے نہیں دوں گا. ہماری اویس ربانی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائی عقل کے ناخن لیں, آپ ہوش کریں آپ کو ہو کیا چکا ہے. آپ نے وہی ضد کی ہوئی جو چھوٹا سا بچہ کہتا ہے مجھے بس بابا وہی کھلونا چاہیے جو میں نے دیکھا ہے. چھوٹے بچے کے دماغ میں جو چیز آ جاتی ہے نا وہ پھر کہتا ہے مجھے وہی چاہیے. اسی طرح کی ضد ہمارے اویس بھائی نے کی ہوئی ہے. اور آپ کو اگر مناظروں کا اتنا ہی شوق تھا تو آپ کو اتحاد امت کا اتنا ہی درد تھا, لیکن ابھی تک آپ نے 10 سے 15 ویلوگ انجینئر صاحب پر جو بنا چکے ہیں نا, آپ 1 یا 2 ویلوگ مفتی منیب الرحمان پر بنا لیتے, لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اتحاد امت کی کوئی فکر نہیں, آپ کو دین نہیں سیکھنا. اگر سیکھنا ہوتا تو مفتی منیب الرحمان کے لیے آپ ایک ویلوگ بنا لیتے, لیکن آپ نے ایسا ہرگز نہیں کیا. اس سے تو ہمیں صاف ظاہر لگتا ہے کہ آپ یہ سب کچھ شہرت کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, ویوز کمانے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں یہ تو کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن اب ہم کیا کریں, ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور آج تک آپ نے جتنے بھی ویلوگس بنائے ہیں ان میں آپ کو سوائے ذلت اور رسوائی کے کوئی چیز ابھی تک آپ کو نصیب نہیں ہوئی, اور یہ ذلت اور رسوائی سوشل میڈیا پر عیاں ہو چکی ہے. اور دوسری یہ بات کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ علی بھائی کسی بھی مستند عالم کے سوا کسی اور عالم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یعنی مفتی منیب الرحمان کے کہنے کے سوا علی بھائی کسی بھی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, سوائے جو ایک اسپیسیفک کیس تھا مصباح صاحب کا. وہ بھی جس دن علی بھائی نے مصباح صاحب کو یہ بلانے کی آفر کی تھی, اسی وقت علی بھائی نے کہہ دیا تھا کہ یہ آفر مصباح صاحب کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اگر کسی اور کو آنا ہے نا تو وہ اس طرح کے سٹیپس فائنل کر کے, یا تو ان کے بڑے آئیں, یا اگر بڑے نہیں آ رہے تو کوئی بڑا اپنے کسی چھوٹے کو اپوائنٹ کرے کہ بھئی یہ میرے بیاف پر بات کرے. لیکن ایسا ابھی تک کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اور دوسرے تھے مفتی طارق مسعود صاحب. ان کے سوا علی بھائی کسی بھی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کے بڑے کسی کو ڈکلیئر نہیں کرتے. یہ بات آپ کو کلیئر تھی, لیکن آپ نے تو وہی ضد کی ہوئی ہے جو بچوں والی ہے. دوسری یہ بات آپ کو یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے. یہ بات آپ کو یعنی سورج کی طرح کلیئر تھی, لیکن آپ نے وہی ضد کی ہوئی ہے. یعنی کوئی انسان کہے کہ بھئی کوا ہوتا ہے نا وہ سفید ہے, بھئی ہم اس کو چیخ کے کہیں گے بھئی کوا کالا ہوتا ہے, لیکن ہمارے اویس بھائی کہیں گے بھئی کوا تو سفید ہوتا ہے, اور اسی ضد پر رک جائیں گے اور کہیں گے بھئی لے آؤ 26 نومبر کو اس بات میں ہم مناظرہ کرتے ہیں کہ کوا سفید ہے یا کالا ہے. تو کون جاہل یا کون پاگل اس جاہل سے مناظرہ کرے گا؟ جو مناظرہ بھی کوا سفید اور کالے پر کر رہا ہوگا وہ بھی جاہل ہوگا نا. تیسری یہ بات آپ کو کلیئر ہو چکی ہے کہ اہل سنت کے علماء نے شدید قسم کی نوعیت کے اختلافات ریکارڈ کروا چکے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کے خلاف. جی یہ علماء کی ذرا زبان سنیے مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں, انجینئر صاحب کے بارے میں نہیں. یہ لوگ نمائندہ شخص سمجھیں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کو, ذرا سن لیجئے. ربانی صاحب آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں, لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں, اور جو حنیف قریشی کو لے کے جانے کی آپ سوچ رہے ہیں, چونکہ آپ بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس سے حنیف قریشی تعلق رکھتا ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حنیف قریشی اہل سنت کا مناظر نہیں ہے. حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے وہ شخص مفتی نہیں ہے, خام خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں, مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا. میں 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ سیال راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کورس کیا ہے. اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا. اس وقت لاہور سے وہ 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنا بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں, ہمارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں. میں نے 30 بار اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے, اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا. میں اس کے گھر کو, اس کی فیملی کو, فیملی ممبرز کو, اس کے تمام عقائد کو, اس کے مرشد خانہ کو, ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے, یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں. وہ مرید ابتباد دوری کے مقام پہ پیر ہوتا تھا, غلام مصطفیٰ شاہ دوری والا, اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ پورا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ معاویہ جا رہا ہے. تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے, ابھی لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا, تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے
उसी पीर से आज तक ये जुड़ा हुए और वो पूरा मुर्शिद खाना गुस्ताख है, उनके तमाम मुरीद गुस्ताख हैं और सिर्फ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ताख नहीं है, हजरत अमर बिन अलास, हजरत अबू मूसा अशअरी, हजरत मुगीरा बिन शुबा, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंदा और दर्जनों सहाबा के हवाले से उनके यहाँ शियों वाला अकीदा पाया जाता है। और फिर आले सुन्नत के अकायद में से एक यानी अहम अकीदा है हमारे नजदीक अफदलुल बशर बादल अंबिया अलल इतलाक सैयदना सिद्दीक अकबर, मैं उलमा की टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, हलाल इतलाक सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है। तो इस बदबख्त शख्स ने पिछले 15-20 सालों में आले सुन्नत के अकीदे से रुगर्दानी की है और इसने इस हवाले से शियों के अकीदे को प्रमोट किया। फिर आले सुन्नत के नजदीक खिलाफत राशिदा, उसमें सिद्दीक अकबर का पहला नंबर, फिर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर इमाम हसन। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਭੇੜੀਏ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲਬੜ ਲਗੜ ਬੱਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੌਂਕੇ ਨਾ ਸਿਆਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਸਿਆਬਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਧੁਰ ਧੁਰ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਆ वो एक पिंडी का इंटरनेशनल कमीना जब से ये बड़ा हुआ है सहाबा को भौंक रहा है। आज की मुजरिम समझ आई, मेरा नाम भी बिगाड़ता है और मैंने आज तक उसका नाम नहीं बिगाड़ा, इसलिए मैं कबूतर जेड़े दिन मैं तेन हाथ पाया ना तेन लागल हो जाएगी किसी ने हाथ पाया लेकिन हम कुत्तों को फिलहाल खुला छोड़ रहे हैं, भौंक लो थोड़ा सा ताकि लोगों को पहचान हो जाए। तरबियत वाला बंदा और होता है, पालतू कुत्ता तेरे जैसा होता है। समझ आ रही है? एक पिंडी दे कुत्ते दा बट्टा खुल गया है, उस कुत्ते दा ऐसा बट्टा खुलिया है। 2018-19 में अमीर दाऊद इस्लामी ने अपने बेटे का नाम रखा, यानी पोते का नाम रखा, कि मैंने एक लफ्ज का माना बयान किया और मैं नाम रखने के वाले से कह रहा था कि यार ऐसा नाम ना रखें कि जिस नाम का इस किस्म का माना। अब वो नाम साबिर रसूल का भी था, अब माना उसका लुगत की 50 किताबों में वही मौजूद है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि इस तरह का नाम ना रखें, बस मेरे खिलाफ लग गया कि जनाब ये देखेंगे। अच्छा शाम को ये बात हुई, मेरे उस्ताद गिरामी ने मुझसे फरमाया कि बेटा ये क्या है, ये इस वाले से बात नहीं है, ये तो सारी लोगों की किताबें पढ़ी हुई थी, यही माना है। तो आपने मुझे फरमाया कि बेटा भाग ये तो मुनाज़रा कर लेगा, तेरे सामने 50-500 किताब को दलाल भी दे देगा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब इन दिनों सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं और मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को चैलेंजेस भी कर रहे हैं और दावत इस्लामी वालों की हमदर्दियां लेने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं और हमारी भोली भाली आवाम जो है उनको शेयर भी कर रही है कि कुरैशी साहब ने कह दिया मेरा दावत इस्लामी वालों से कोई इख्तिलाफ नहीं है, बस थोड़ा बहुत तंजीमी इख्तिलाफ है, जबकि हकीकत ये नहीं है। अवाम अहले सुन्नत इस बात को समझे कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने दावत इस्लामी पर पिछले दिनों जो इल्जामात लगाए हैं वो कोई तंजीमी इख्तिलाफात नहीं है। मुफ्ती साहब ने कहा था कि दावत इस्लामी वाले और अमीर अहले सुन्नत ये मौला अली से मोहब्बत नहीं करते, ये रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बोलते नहीं है। फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जब अमीर अहले सुन्नत ने जुलूस निकाला था और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नारे लगाए थे और फिर हर सहाबी नबी जन्नती का नारा जब लगाया था उस वक्त भी हनीफ कुरैशी साहब ने इस नारे की मुखालफत की थी कि ये नारा नामुकम्मल है। तो अवाम अहले सुन्नत इस बात को समझे, सिर्फ हनीफ कुरैशी साहब की ये छोटी सी बात को लेकर कि मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है दावत इस्लामी वालों से, सिर्फ तंजीमी सा इख्तिलाफ है, तो लोग उसको वायरल कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं कि जनाब उसने कह दिया कि दावत इस्लामी वाला कोई मुफ्ती आ जाए या डॉक्टर साहब आ जाए और वो मिर्जा के साथ बैठ जाए। अब अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी ने जब अपने पोते का नाम मुआविया हसन गालिबन रखा था तो उस वक्त हनीफ कुरैशी साहब के चंद क्लिप सामने आए थे, उसमें हनीफ कुरैशी साहब ने कहा था कि मुआविया का माना भौंकने वाला कुत्ता है तो इस नाम पर अपने बच्चों के नाम ना रखो। बकौल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के कि मैंने इस बात से रुजू कर लिया था, तौबा कर ली थी, जिस तरह अभी सैयदना बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से रुजू किया कि मुझसे जो सबकत लिसानी हो गई थी। अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तौबा नाम है इकरार जुर्म का, आइंदा ना करने का और नदामत का, मगर आप अभी अपने इस वीडियो क्लिप के अंदर जो अभी आपने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है आप उसके अंदर ये कह रहे हैं कि मैं तो मुनाजिर हूं, मुआविया नाम का जो माना मैंने बयान किया है भौंकने वाला कुत्ता, मैं तो 500 किताबों से वो माना दिखा सकता हूं, लुगत की बेशुमार किताबों के अंदर यही माना है। तो जनाब मेरे उस्ताद ने जब मुझसे ये बात सुनी तो मेरे उस्ताद ने कहा कि फितना होगा तो आप इस बात से जनाब वो रुजू कर लें, तो मुझे कहा गया तो मैंने कहा लो जी आलो मैं रुजू करता हूं। भाई इसको रुजू नहीं बोलते, इसको तौबा नहीं बोलते, रुजू नाम है नदामत का, इकरार जुर्म का, आइंदा ना करने का। और आप तो अब भी कह रहे हैं कि मैं जनाब इस बात पर जो है वो दलाइल दे सकता हूं। तो फिर हनीफ कुरैशी साहब ये बात कर रहे हैं कि मैंने उस वक्त भी जो है सिर्फ एक ये बात की थी कि मुआविया नाम का माना है भौंकने वाला कुत्ता, तो मैं सिर्फ एक नाम का माना बयान कर रहा था, मैंने तो साबिर रसूल की तरफ इशारा ही नहीं किया था। भाई आप क्या समझते हैं कि अवाम जो आपको सुन रही है वो सारी की सारी पागल है? इसी को तो तारीज़ कहते हैं, ये तारीज़न नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबा पर तान इसी अंदाज के साथ किया जाता है। आपको नहीं पता कि मुआविया नाम किसका है, अवाम को नहीं पता मुआविया नाम किसका है, मुआविया जो मशहूर है वो साबिर रसूल का नाम है और आप कहते हैं मैं तो वैसे ही जनाब बात कर रहा था और मैंने साबिर रसूल की तरफ तो इशारा ही नहीं किया। तो आप ये जो कौम को बेवकूफ बनाने की नहीं बिल्कुल नहीं, ये नुमाइंदा शख्सियत नहीं है, ये हमारे अवैस भाई की एक जहालत और एक ज़िद है जो एक छोटे बच्चे की ज़िद की तरह है, जो एक जाहिल किस्म के इंसान का ज़िद है। कौवा सफ़ेद होता है काला नहीं होता, इसी किस्म की ज़िद हमारे उवैस भाई की है। चले एक और मौलवी बेचारे की भी सुन लें, वो बेचारा माफ़िया मांग रहा है, हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, वो हमारी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। अब मैं बरेलवियों की बात मानूं या अवैस रबानी साहब की बात मानूं, क्योंकि अवैस रबानी साहब को भी काफ़ी लोग कहते हैं कि रावजी है, तो मैं किसकी बात मानूं? हनीफ कुरैशी को बिल्कुल भी मुनाजरा के काबिल नहीं समझते। अगर आपने मुनाजरा करना है आप बिठाएं जनाब राशिद महमूद कादरी साहब को। राशिद महमूद का नाम आते ही कराटे लग जाता है। 26 नंबर को क्या होने जा रहा है, एक हमाम में 2 नंगे नहाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको हमामी मुनाजरा कहा है। हनीफ कुरैशी से जैसा बंदा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मौक़िफ़ पे जाके क्या बात करेगा जो खुद हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कमजोर मौक़िफ़ रखता है। यार देखिए आप अगर आपने मुनाजरा कराना ही है, अगर हक़ बातिल का मुनाजरा करा रहे हैं तो यार कम से कम बंदा तो आप कोई स्टैंडर्ड का चूज करें। यार मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा मुस्तनद आलिम है सुन्नियों का जो हनीफ कुरैशी को पास करता है, क्लीन चिट देता है, यार ये बंदा ठीक है। सर वो खुद एक मुतनाज़ा शख्सियत है, उसके बयानात इस किस्म के हैं, उसके मामलात इस किस्म के हैं, वो हमारे लिए काबिल एतबार शख्सियत नहीं है, हम उसको नहीं मानते काबिल। अब ये चीज़ चौधरी की चांद की तरह रोशन हो चुकी है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। दूसरी बात, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की मुतनाज़ा शख्सियत है।
तीसरी बात, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कोई भी आलिम, अहले सुन्नत का आलिम उन्हें ऑन करने के लिए तैयार नहीं, मुस्तनद आलिम। ये बच्चों बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि मुनाजरा करने से कोई फ़ायदा नहीं। मुनाजरा हो भी चाहे तो बरेलवी इस मुनाजरे को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उन्हें आलिम ही नहीं मानते, वो उन्हें मुफ्ती नहीं मानते, वो उन्हें राबजी, साहबा पर भौंकने वाला कुत्ता, लूमड़ी, भेड़िया, काला कवा, ये सब कहते हैं। और इस मुतनाज़ा शख्सियत के लिए हमारे अवैस भाई अंधे हुए पड़े हैं। मसला अंधे नहीं हुए पड़े, मसला ये है कि व्यूज़ के चक्कर में अंधे हुए पड़े और कुछ नहीं। इसका मतलब इस मुनाजरे से किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जिस चीज़ में ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं, उस चीज़ को करवाने के लिए अवैस रब्बानी भाई कितने दिनों से आवाम को उलझा कर वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं। और हमने उन्हें कहा था कि भाई अगर आपको इतना इत्तेहाद उम्मत का शौक़ है तो एक व्लॉग बनाए ना मुफ्ती मुनीब रहमान के लिए, कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी के लिए एक वीडियो अपलोड कर दें, बस फिर हम देखते हैं मिर्ज़ा साहब को। और ये वीडियो बनवा लें, उसके बाद अगर अली भाई उस पर कायम ना रहे ना, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स अली भाई को छोड़ देंगे। लेकिन आज तक आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आप व्यूज़ के चक्कर में इंजीनियर साहब का नाम ले लेकर व्यूज़ कमा रहे हैं और कुछ भी नहीं। और दूसरी ये बात कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी के फ़िरके की लोग चीख के कह रहे हैं कि भाई ये हमारी नुमाइंदा शख्सियत नहीं है, ये एक ईरान के टुकड़ों पर पड़ने वाला जानवर है। कितने किस्म के अल्फाज कह रहे हैं। क्या ये जलाली पार्टी, अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जीत भी जाएं, क्या वो खुश हो जाएंगे? कभी खुश नहीं होंगे। वो कहेंगे ये दोनों ही गुमराह हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको वही समझ नहीं आ रहा कि कौवा सफ़ेद है या काला है। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब नुमाइंदा शख्सियत हैं या नहीं। सीधी सी बात है। लेकिन अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर आप जितनी वक्त तक इस ज़िद पर रहेंगे, उसी वक्त तक आपको ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा आपको और कुछ भी नसीब नहीं होगा। क्योंकि आप हक़ को छोड़कर दो नंबरी, दगाबाजी, दूसरों को नीचा करने पर लगे हुए हैं, तो आपका मुकद्दर सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ भी नहीं है। अवैस भाई, आपको इस बात का इल्म ही नहीं कि इंजीनियर साहब तो वो शख्सियत है जिनके दुश्मनों की चालाकियाँ जहाँ पर ख़त्म होती हैं, वहाँ से इंजीनियर साहब की अकल स्टार्ट होती है। आपको पता ही नहीं आपने किस बंदे में हाथ डाला है। इंजीनियर साहब तो आप लोगों के बड़ों की बातों में नहीं आए। अवैस भाई, आप तो शेई कोई नहीं। बाकी अवैस भाई का कहना कि मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब के साथ मुबाहिसा हो सकता है, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ क्यों नहीं? मेरे भाई, मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब ने आप लोगों की तरह 26 नवंबर का व्लॉग बना के ऐलान नहीं किया था कि मैं जा रहा हूँ इंजीनियर से मुनाजरा करने, मुबाहिसा करने। अगर वो भी इस तरह करते ना तो उन्हें भी कोई एकेडमी में इंटर होने नहीं देता। लेकिन उन्होंने आपकी तरह नहीं किया। उन्होंने मुकम्मल तरीके से एकेडमी के डिसिप्लिन को फॉलो किया, तो उनके साथ सारी बातें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, आप एक बारात को लेकर आ रहे हैं और वो भी बगैर इजाज़त किए, तो आपको लित्तर ही पड़ेगी, ज़िल्लत ही पड़ेगी, रुसवाई पड़ेगी और कुछ नहीं नसीब होगा। उम्मीद है कि हम अब इस चीज़ का वेट करेंगे कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी के लिए मुफ्ती मुनीब रहमान से कब वीडियो बनाने की डिमांड करेंगे हमारे अवैस भाई। हमें पता है कि मुफ्ती मुनीब रहमान मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कुछ नहीं समझते, लेकिन फिर भी हमें ये तड़प देखनी है अवैस भाई से। हमने सिर्फ अवैस भाई से एक व्लॉग बनवाना है कि भाई आपको दर्द है या नहीं। ये जो आपने मेकअप लगाया हुआ है ना कि मुझे बड़ा एक दर्द है उम्मत मुस्लिमा का, इत्तेहाद उम्मत में मुझे जेल होना पड़े, ये कहानियाँ करवाना बंद करें। जो आप दो नंबरी कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम है आपकी दो नंबरी। और आखिर में अवैस रब्बानी साहब ये बार बार ये ताना देते हैं कि भाई इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मिर्ज़ा परस्त हो चुके हैं। नहीं भाई नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम ने जो बात पहले दिन से की थी ना, आज भी उसी बात पे वो उसी तरह कायम है जो जिसी तरह पहली मरतबा उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि अपने बड़े को लेकर आओ। अभी तक आप लोग अपने बड़े को लेकर आए ही नहीं, कोई वीडियो ही नहीं बनाई। जिसको भी लेकर आ रहे हो उसकी तो हमने इतनी इंजीनियरिंग कर दी है, कि उसके फ़िरके के लोग उसको ही जलील और रुसवा कर रहे हैं, जिस तरह आप खुद हो रहे हैं। आखिर में अवैस भाई के लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और उन्होंने जो ज़िद की हुई है उस ज़िद के मुताबिक अल्लाह ताला उसको समझ दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।